میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کہتا ہوں. ہم دوبارہ ریکنیکٹ ہیں اور خدا کے زندگی بخش کلام کو دوبارہ سننے جا رہے ہیں. سو میرے عزیزو، ہم سیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں اور کون لوگ جو نہیں بنتے اور جن کی زندگیوں میں بدی گناہ ہے ان کے واسطے یسوع ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور ہم آگے بھی سیکھتے چلے جائیں گے. سو میرے عزیزو، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلوانا چاہتے ہیں. ہر ایک بشر چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیپ ہے، ہمیں اپنے خداوند یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور ماننا ہے، اور اس کی مصلوبیت کو ماننا ہے، اس کی صلیب کو ماننا ہے. تبھی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے لائق ہوں گے. سو میرے عزیزو، اب کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. میرے عزیزو، دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگریز جس نے خدا کو قبول نہیں کیا، لکھا ہے وہ دنیا میں آیا اور دنیا نے اسے رد کر دیا. لیکن اس کی بابت آگے لکھا ہے، یوحنا کی انجیل پہلے باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا. اس کے اندر کاؤنٹنگ درج نہیں ہے کہ اس کی کتنی کاؤنٹنگ ہے، لکھا ہے جتنوں نے. There are so many people. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے اور بیٹی کہلانے کا جو حق ہے وہ ہمیں یسوع مسیح دیتے ہیں اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے. سو میرے عزیزو، اس کے بیٹے بیٹیاں بننے کے لیے ہمیں ایسٹ کیا چاہیے، کیا چیز چاہیے، کس طرح سے ہم بن سکتے ہیں. جو اس کے آگے لکھا ہے 13ویں آیت میں، وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں. لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جتنے لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ان کی جو ایسٹ ہے وہ گوشت نہیں، انسان کے ارادہ سے نہیں، انسان کی پلاننگ سے نہیں، بلکہ لکھا ہے وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. پھر ہم جو لوگ خدا سے پیدا ہوتے ہیں ان کی بابت لکھا ہے وہ فانی نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے پیدا ہوئے. سو میرے عزیزو، وہ ایسٹ جو ہے وہ روحانی ایسٹ ہے. اس میں جسم نہیں، اس میں انسان کے ارادہ نہیں، اس میں خواہش نہیں، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. سو میرے عزیزو، جتنے لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، یہ ان کی بابت بات کر رہا ہوں جو بلیورز ہیں، جو ایماندار ہیں. میرے عزیزو، یہ ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے پیدا ہوتے ہیں، نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی جسم کی خواہش سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ تمام خدا سے پیدا ہوتے ہیں. میرے عزیزو، ہم بشر ہیں، ہم فانی نہیں بلکہ غیر فانی ہیں. ہماری جو حد مقرر ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے جائیں، ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں یہوہ یری آسمانی باپ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب جائیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ جب ہم جائیں تو لاکھوں کروڑوں فرشتگانوں کے ساتھ ہم وہاں پہ ہالےلویا کے نعرے ماریں. وہاں پر ہم بہتوں کی زندگی کے لیے برکت کا وسیلہ بھی ٹھہریں. جیسے ہم یہاں پر برکت کا وسیلہ ٹھہرتے ہیں، ہم وہاں پر باعث برکت ٹھہریں گے. وہاں پر ہماری زندگی میں صرف اور صرف خدا کا جلال بہے گا. میرے عزیزو، بہت سارے لوگ بیٹے اور بیٹیاں کہلانا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانا چاہتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی میں بات آپ کے حضور میں رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، اگر آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانا چاہتے ہیں، اس کی بابت بھی عبرانیوں 12 باب اور اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے میں آپ کے حضور میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے جب وہ بیٹا اور بیٹی بناتا ہے تو وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے. سنیے گا، عبرانیوں 12 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے
वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक है तो तुम हराम ज़ादे ठहरे ना के बेटे। मेरे अजीजों, जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसमें मुजस्सम हो जाते हैं, और फिर हम उसी पुरानी बातों में, उन पुराने ख्यालों में या पुराने कामों में दोबारा चले जाते हैं, तो मेरे अजीजों खतरनाक बात यह है कि लिखा है जिसको वो बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। फिर हमारी छांट कांट होती है, फिर वो हमसे इंतकाम लेता है क्योंकि वो मेरा बाप है। जिस तरह हम दुनियावी बाप अपने बच्चों को, उनको तरबियत के लिए कभी डांट भी देते हैं और कभी झिड़क भी देते हैं, और कभी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते भी हैं ताकि हम उसकी अच्छी तरबियत कर सकें। और खुदा भी अजीजों हमारी अच्छी तरबियत करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम हलाकत में जाएं। खुदा नहीं चाहता कि हम बदी में रहकर जब इस दुनिया से जाएं उस आग और गंदक की झील में जाएं, बल्कि खुदा हमें कोड़े लगा के समझाता है। खुदा हमें बाज़ औक़ात आजमाइशों में डाल देता है। खुदा बाज़ औक़ात हमें तकलीफ़ों में डाल देता है कि बेटी बेटी सुन, मैं तेरा बाप हूँ। वो हमें तंबीह करता है, वो हमें बताना चाहता है, वो हमें सिखाना चाहता है। और जब लिखा है अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें हम सब शरीक हैं, सब बिलीवर्स की बात हो रही है, जिसमें सब बिलीवर्स की बात हो रही, सब शरीक हैं, तो सब शरीक हैं, तो तुम हराम ज़ादे ठहरे ना के बेटे। मेरे अजीजों, खुदा के जो प्यार है वो अज़ल से है। खुदा इंसानियत से बेहद प्यार करता है। और मेरे अजीजों, आज हमें बस होशियार रहने की जरूरत है। आज हमें सिर्फ अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है पहला पतरस पहला बाप और उसकी 13 आयत में लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर होशियार रहकर उसकी फजल की कामल उम्मीद रखो। हमें अपने कमर को होशियारी से उसके फजल के लिए कामल बनने के लिए अपने आप को जांचने की जरूरत है। और लिखा है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बने। मेरे अजीजों, हमें खुदा के फर्माबरदार बनने की जरूरत है। हमें उसके बेटे और बेटियां बनने की जरूरत है। हम उसके अच्छे बच्चे जभी कहलाएंगे कि हम अपनी पुरानी रफ्शों को छोड़कर, पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों में शामिल हो जाएं, जिसका खुदावन यीशु ने फरमाया है, आए थके मांदो बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है। मेरे अजीजों, हमें उसकी फर्माबरदारी में, ताबेदारी में रहकर अपनी जिंदगियों को बसर करना है। और बल्कि मेरे अजीजों, पुरानी ख्वाहिशों को हमें तर्क करना है, पुरानी ख्वाहिशों को हमें डिलीट और कैंसिल करना है, और हमेशा 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 के लिए अपनी पुरानी अपनी आदतों को, जो बदी में है, जो नफरत में है, जो ऐबजोई में है, जो ज़िनाकारी में है, वो तमाम बातें जिससे हम खुदा को नाखुश करते हैं, उन तमाम ख्वाहिशों को, उन तमाम पुरानी चीज़ों को हमें रद्द करने की अजीजों ज़रूरत है। तभी हम मसीह में मुजस्सम हो सकते हैं। तभी हम ना खून से, लिखा है वो ना खून से, ना गोश्त से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा होते हैं। तभी अजीजों हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे, जब तक हम पूरी फर्माबरदारी के साथ अपने भाई यीशु की फर्माबरदारी करें, अपने बाप आसमानी बाप की फर्माबरदारी करें। क्योंकि लिखा है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर रहता है। मेरा बाप कहां पर है? आपका बाप कहां पर है? आसमानों पर रहता है। और उसकी बाबत लिखा है, आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। मेरा खुदा लामहदूद है, उसकी मोहब्बत लामहदूद है। वो एक लम्हे में हमें अपना बेटा और बेटियां बनाने की कुदरत रखता है, एक लम्हे में हमारे गुनाहों को माफ करने का अख्तियार रखता है। मेरे अजीजों, फक्त हमें पुरानी चीजों से, पुरानी ख्वाहिशों के ताबे नहीं बनना, बल्कि लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा देखना पाक होना चाहिए। हमारी सोच पाक होनी चाहिए, हमारे इरादे पाक होने चाहिए, हमारे इरादे
अच्छे होने चाहिए ताकि दूसरों के लिए वो बाइस बरकत का वसीला ठहरे। हम दूसरों के लिए किस तरह से बाइस बरकत का वसीला ठहर सकते हैं मेरे अजीजों? इसी तरह कि हम अपनी पुरानी रफ्शों को छोड़ें, हम अपने पुराने इरादों को छोड़ें, वो पुराने ख्यालों को छोड़ें, पुरानी जिंदगी को रद्द कर दें और यीशु में मुजस्सम होकर बाप के, यहोवा बाप के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। फक्त हम पुरानी चीजों को रद्द करते चले जाएं मेरे अजीजों। लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक उसी तरह तुम भी पाक बनो और अपने सारे चादर से पाक बनो। और लिखा है, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। मेरा यीशु पाक है, उसके इरादे पाक है, उसका मुजस्सम होना पाक है। हर चीज में पाकीज़गी पाई जाती है मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। उसकी बादशाही खून और गोश्त की बादशाही नहीं, उसकी बादशाही हड्डियों की और इस जिस्म की बादशाही नहीं। उसके लिए हमें उसमें मुजस्सम होना पड़ेगा, उसके तुखम में होकर मुजस्सम होना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, लिखा है बलीवर्स के लिए वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना गोश्त से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा मोहब्बत है और वो आप लोगों की हलाकत नहीं चाहता। वो आप लोगों से प्यार करता है, वो आप लोगों की मखलसी चाहता है, वो आप लोगों के लिए नजात चाहता है। और मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि हम गंधक और आग की झील में जाएं, बल्कि वो चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। जो उसके बेटे और बेटियां हैं वो उसकी तमाम ब्लेसिंग के क्या है जी? वारिस हैं। अगर आप उसके वारिस बनना चाहते हैं तो आज अपनी जिंदगियों में उसका इकरार करें और कहें, मेरे यीशु, ऐ मेरे अब्बा, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं और मैं यीशु, मैं तेरा भाई बनना चाहता हूं। और इस वसीला से हम खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं मेरे अजीजों। सो आएं मेरे साथ, अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, चंद लम्हा हम दुआ करेंगे। और मेरे अजीजों, इससे पेश करके मैं दुआ करूं, मैं शुक्रगुजार हूं CTN टेलीविजन का और उसके CEO डॉक्टर सुल्तान भट्टी साहब का, जिनके वसीला से आज का कलाम बहुतों की जिंदगियों तक पहुंचा है। मैं दुआ गो हूं सारे इंतजामिया के लिए, भाइयों के लिए, और जिनके वसीला से जो कलाम आप तक पहुंचता रहता है, खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे और इस चैनल के वसीला से बहुत सी जिंदगी के लिए नजात का सबब ठहरे। हम सब मिलकर दुआ करते हैं। मेरे जिंदा आसमानी खुदा, तू जो पाक, मुहीब और कुदरत वाला है, तू जो बादशाहों का बादशाह, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, मैं आपकी दुआ करता हूँ, प्यारे खुदा तू जो पाक है, मेरे तमाम सुनने वालों के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। वो बेटे और बेटियां जो सुनते और मेरे खुदा उनके लिए हम दुआएं खैर करते हैं। मेरे आसमानी खुदा, आज का कलाम बहुतों की जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आज का कलाम बहुतों की जिंदगियों के लिए नजात का वसीला ठहरे। इस चैनल के वसीला से प्यारे खुदावन घर घर में तेरा कलाम पहुंच रहा है। इस चैनल को भी प्यारे खुदावन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इनके एक एक भाई के लिए मैं बरकत चाहता हूं जो प्यारे खुदावन कैमरा पे या सिस्टम पर होते हैं। एक एक भाई के लिए मैं दुआ खैर करता हूं, इनके घराने के लिए दुआ खैर करता हूं। तेरे ममसू पास्टर सुल्तान सरदार के लिए दुआ करता हूं, इनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूं। प्यारे खुदा इनके वसीला से बहुत बहुत बड़े काम हो और इनके वसीला से तेरा कलाम डोर टू डोर घर घर में पहुंचे। मेरे आसमानी खुदा प्यारे खुदावन, इसी के साथ मैं तेरा भी शुक्रगुजार हूं, तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे लोगों तक तेरा कलाम पहुंचाऊं। जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है प्यारे खुदावन, इस कलाम को रिसीव करें और प्यारे खुदावन आज तुझे अपना नजात दिंदा मानकर हम बाप के बेटे और बेटियां बनने के लायक हो। ये सब कुछ मांगता तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।